इनके हस्बैंड कैसे कत्ल हुए? इन्हें बड़ा जुल्म किया, इन्हें मारिया बड़ा उत्थे। कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, कोई इसका CRO रिकॉर्ड है? थाने लियाकता मतलब 22 FIR है 751 की। ये बंदा ऐसे रिकॉर्ड करता याफ्ता है, है। रिकॉर्ड याफ्ता है। एक बेटी है, बड़ी है बेटी, 2.5 साल की। 2.5 साल की बच्ची है। जी कह रहा था कि यार देख अब्दुलरहमान, मैं इज्जतदार शहरी, एक मेरे मुंह ते ने जुत्ती मारी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ये हादसाती मौत है 322 है तो फिर उस पे कैसे आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? बंदे को प्रेशराइज किया जा रहा है, थ्रेट करिए, जिसका इससे ताल्लुक भी नहीं है। नजायज बंदे को मारा गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। लियाकताबाद के अंदर अभी हम मौजूद हैं। इनके हस्बैंड कैसे कत्ल हुए, क्या मामलात हैं, इनसे जानते हैं। आपके हस्बैंड काम वगैरह क्या करते थे? प्रॉपर्टी डीलर। तो कोई उनका किसी के साथ कोई लेन देन, कोई ऐसा मामला तो नहीं था? नहीं नहीं, ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। इसको आपके हस्बैंड को? ਜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ। अब्दुलरहमान कौन है? इनके दोस्त हैं या दोस्त। कोई रास्ते में मिले? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਹੈ। आपके हस्बैंड के ਜੀ दोस्त हैं? ਜੀ ठीक है। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਉੱਥੇ। नहीं, मारने की वजह क्या है? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा, आप फिर बाद में थाने गई हैं, देखा अपने हस्बैंड को जाके? ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ। तो किसी बहन भाई के साथ आपने राब्ता किया हो कि हस्बैंड आपके जो है अरेस्ट हो गए हैं? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ। कितने बच्चे कितने हैं आपके? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, बड़ी है बेटी? 2.5 साल की। 2.5 साल की बच्ची है। जी तो ये सारा अभी जो हमने स्टार्टिंग पे बताया है कि कत्ल हो गया है या वो कैसे ये हादसा हुआ, ਭਾਈ क्या ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ कैसे? ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਾਮ ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਔਰ 2-3 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो आपके हस्बैंड को मारा गया ये तशद्दुद के थ्रू मारा गया? तशद्दुद किया है किस जगह पे ये इनके साथ ये हुआ? ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। नहीं, वो मारा तो है, हस्बैंड कैसे, मौत कैसे हुई हस्बैंड की? ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ पर्चा किस चीज का उन पे दिया था आपके हस्बैंड पे? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए, आपने बताया कि मेरे हस्बैंड को ना जो थप्पड़ मार रहे थे, खालिद गुजर बता रही हैं आप, वो तशद्दुद कर रहे हैं, तो अरेस्ट कैसे हो गया आपके हस्बैंड? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ अच्छा, ਰਾਤ। साथ कौन थे? मुझे आप बता रही कि अब्दुलरहमान कोई ਹਾਂਜੀ, साथ है? ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੀ ਬਣਿਆ। उसको भी अरेस्ट किया? ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ मतलब कि आपके हस्बैंड के साथ कोई और दोस्त भी था? ਹਾਂਜੀ अब्दुलरहमान। जी, अब्दुलरहमान भाई इनके साथ थे जो मौके पे मौजूद थे। तो मज़ीद जो है ना, अभी हम इनसे क्या सवाल करें? हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है और 2.5 साल की बच्ची है इनकी। अब वो बच्ची जो है ना अपने बाप को तरस रही है, क्या हो क्या रहा है, लेकिन अभी तक जो मौत की वजह है वो सामने नहीं आई। और बता रहे हैं कि कोई FIR भी नहीं हुई इस पर, कोई मतलब कि किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इस पर।
क्योंकि जब कत्ल मर्डर कुछ ऐसा हो तो फिर ही उसकी मुद्दत में जो है ना सारा ये सिलसिला चलता है। लेकिन मज़ीद जो है ना बात करते हैं अब्दुर्रहमान भाई से, तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करनी है इस पर। अभी हम जा रहे हैं, जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने हमें बताया था कि उनकी यहाँ पे ही है तल्ले फ्लैटों में शॉप। ये सानुल्लाह भाई का जो मौत का वाक़या ये हमें समझ नहीं आ रही। हमने काफ़ी कोशिश की उनकी वाइफ से बात करने की, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं है, हाँ जी, वो अल्फाज ना साथ नहीं दे रहे उनके। काफ़ी घबराता है वो उनका। तो मज़ीद हमने जो है ना उनको तंग नहीं किया। उन्होंने बताया कि अब्दुर्रहमान भाई जो है ना वो अंदर थे थाने के हवालात के। ये सारा मामला क्या है मुझे ज़रा बताएं। सर एक जो था हमारा एक इशू चल रहा था, यहाँ पे कोई मामला था। ठीक है, वो एक पर्या बैठी हुई थी थाने में। ठीक है, वो पर्या का फैसला भी हो गया हुआ था। बाहर एक बंदा खालिद साहब थे गुज्जर नामी, ठीक है जी, वो बाहर में बैठा, अंदर हमारा फैसला चल रहा था तो बाहर झगड़ा हुआ है। उसके मुंह पे एक जूता मारा उसने उतार के। तो उसके बाद जनाब बाहर हाथापाई शुरू हो गई, उसको ठुड्डे वगैरह सोनू वगैरह मारे। इसलिए मैं जी पुलिस ने एक्शन लिया और 57 हो गया। उस 57 में मैं भी चला गया और राना खान भी चला गया। और उसके बाद उनके जो 2 फरीक थे वो भी चले गए। अच्छा अंदर के 2 उनकी तरफ से 2 आपकी दो तरफ से। हमारी तरफ से चले गए, ठीक है जी। अच्छा वो अंदर जब हम लॉकअप में गए हैं, लॉकअप में बंद कर दिया, वहाँ पे भी वो उसको थ्रेट करता रहा कि कचहरी में मिलेंगे, अभी 57 ये हैं वो है। कौन कह रही है? ये खालिद गुज्जर कह रहा था, ठीक है जी। फिर सुबह हुई है तो हम कचहरी गए हैं, तो वहाँ पे भी जो सीन पार्ट बना हुआ था, बंदे इकट्ठे हुए थे। तो जो उन लोगों के बंदे इकट्ठे। हाँ जो उनके लोगों के बंदे इकट्ठे हुए थे, तो वो ज़मानत का टाइम था, ज़मानत होने वाली थी। तो वो मुझे कह रहा था कि यार देख अब्दुर्रहमान, मैं इज्जतदार शहरी, एक मेरे मुंह ने जुती मारी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरा दिल घबरा रहा है। 2.5 साल की बच्ची है, तो मेरा दिल घबरा रहा है यार। मैंने ना मेरा इतना कभी भी किसी भी इंसल्ट नहीं हुई, मारी नहीं, मेरा कसूर क्या था। इतना में करते करते उसने हाथ रखा और गिर गया। ये कचहरी के अंदर, ये कचहरी के अंदर का वाक़या सर ये हुआ। तो वही ना, अभी तक मौत की जो है वजह वो सामने नहीं सर, आ वो रही। तो अब तो ये सर जो है देखे ना, ना जो थाने अदालत के अंदर जब वो हवालात में थे और उस पे 752 का जो पर्चा हो गया और अंदर चले गए। हाँ जी, वो मेरा बेटा था जी। हाँ, उन्होंने मैसेज दिया। जी उसने मैसेज दिया, ये भाई साथ था, सामने थे ये भाई साहब, ये अपने जैन भाई है ये भी भाई से मौजूद आप थे? मैं भाई साहब थाने के अंदर मौजूद थे? मैं थाने के बाहर मौजूद था। वो खालिद गुज्जर थाने से बाहर आया है, ठीक है ना, थाने से था, वो भी थाने के अंदर था। वो थाने से बाहर है। एएसआई शाहिद खान है, उसके कमरे में परे बैठी हुई थी, वहाँ पे फैसला हो रहा था, तो वो थाने से कमरे से बाहर आया है। अच्छा, आप लोगों का कोई इशू चल रहा था, उसकी बात अभी हो रही थी, जी जी। उस दौरान ये लड़ाई झगड़ा उस दौरान ये बाहर आके ना, इसने मेरे साथ ही वो राना एहसान खड़े हुए थे, ठीक है ना, उसके आके उसने बदतमीजी की है। उसने मुंह पे उसके राना एहसान के खालिद गुज्जर ने जूती मारी है। उसके बाद वो जो आप बता रही हैं ऐसे ही, क्या नाम उनका लिया है? एएसआई शाहिद खान, उसके सामने ये सारा कुछ हुआ? नहीं वो अंदर थे थाने में, वो अंदर थे, वो अंदर परे बैठी हुई थी, फैसला कर रहे थे। तो इसने बाहर आके ये तमाशा शुरू कर दिया, ठीक है। ये बाद में आके ना इसने फिर उसके मुंह पे जूती मारी, फिर उसने उसको मुक्के मारे, वो नीचे गिरा, उसने ठुड्डे मारे, दरवाजे में उसको मारा। हमारे जो अहल इलाके के लोग हैं वो भी उसको वहाँ पे मौजूद है, वो भी छुड़ाते रहे उसको, ठीक है ना। तो ये इस तरह ये वकूआ हुआ है। इनकी मौत की वजह क्या बनी है? जैसे भी इन्होंने बताया कि कचहरी गए हैं जमानत के लिए, जी जी। और वो गिर गए हैं। अब इस पे ये होगा कि एफआईआर तो हुई नहीं है, क्योंकि एफआईआर होती तो हम चलाते साथ। अभी ये अंधा कत्ल है, अंधा मर्डर है, अंधी मौत है, इसका कोई नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये हादसाती मौत है, 322 है, तो फिर उस पर कैसे आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? ये तो थोड़ा बताइए ना सर। ये तो फिर अदारी बता सकते हैं ना कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तो वो फैसला आया नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जैसे वो आएगी तो फिर तो जाहिर है कोई ना कोई एक्शन तो पुलिस लेगी ना, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि यार उसको इंसाफ मिले। राना एहसान का कत्ल हुआ है, वो नाजायज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर देखे ना, बात आ रही है कत्ल वाली। कत्ल होता है कि कोई फायर सर, मारा देखिए है, ना, मेरी बात कोई सुनिए, आपको मेरी बात मुक्का सुनिए, मारा सर। है, आपको अरेस्ट करके हम अंदर ले गए सर हैं। एक होता है गुमनाम कत्ल भी होता है। जैसे एक बंदे को हिरासा किया जाए, उसको प्रेशराइज किया जाए, ठीक है ना, उसको थ्रेट किया जाए, ठीक है। वो प्रेशर में आके जाहिर है ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, वो जाहिर है दिमाग की नस पड़ सकती। किन की? ये राना एहसान मेरे ख्याल में होगी कोई 48-50 साल के होंगे वो, ठीक है। हाँ जी, ठीक हाँ जी, इतने की होंगे वो। बीमार वगैरह भी थे? अब बीमार थे, बीमार नहीं, उनको हल्के फुल्के ब्लड प्रेशर का मसला दोबारा और कुछ नहीं था। तो आपके समझ रहे हैं जो उनको प्रेशराइज किया गया है, थ्रेट किया गया, ये उसकी वजह से सारा हाँ, उसकी वजह से सारा होगा। सर, इस पे हमारी पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? जब वो हवालात के अंदर उसको थ्रेट कर रहे हैं तो कोई कहता ना कि यार ये क्यों उसके अंदर थाने के उसको हरासा कर रहे हैं?
सर ये तो अब इदारों को चाहिए ना, पुलिस को चाहिए कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करे पूरी, इसके पूरे जो है ना वो वकूबे पहुंचे, पूरे थाने फैसले वालों का पे क्या रवैया आपके साथ अभी तक? थाने वाले करे भैया तो अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम राना इंसान को इंसाफ दिलाएंगे, ठीक है। तो हम तो अल्लाह का शुक्र है साबित कदम उनके साथ है, उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चे के साथ हैं हम, ठीक है। जब तक होगा हम उनकी कफालत करेंगे, ये हमारा हक और बनता है। लोग वहाँ पे मौजूद थे कोई इनके साथ? ये भाई मौजूद कासिम भाई थे। ये भी मौजूद थे। हमारा फैसला आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि आप उनके दोस्त हैं, जी, मैं कुलीग उनका हैं, दोस्त क्या हूँ। इतने? बेसिकली मेरा 22 का काम है, साथ में प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। बेसिकली ये दुकान थी मेरी, मेरा अब्दुलरहमान किराएदार था। ठीक है। राना एहसान हमारे फ्रेंड थे, दोस्त है, ये उनका दफ्तर है, ये उनकी यहाँ पे वो बैठते थे। ठीक है। तो रात को हमें पुलिस ने बुलाया कि ये मसला बना आपका, आप ना पंचायत आप आके फैसला करें। हमारा फैसला हो रहा है, हमारी बातें शातें हो रही हैं, सारा बात बाहर आके ये बंदा उसके साथ जिसका इस चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है, नाजायज़ ही अच्छा उसके मुझे ये हाथ। बताएं, खालिद गुज्जर जिसकी जुबान पे सुने वो ले रहे हैं नाम, थ्रेड कर रहा है थाने के अंदर, वो थ्रेड कर रहा है, ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, कोई इसका CRO रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है, मनशियात फरोश, ये बंदा है कौन बेसिकली, ये जानना चाह रहे हैं। बेसिकली आगे भी मामला ऐसे ही चल रहे हैं कि मुझसे दुकान किराए पे ली जा रही है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया दुकान के ऊपर। ठीक है। कुछ कचहरी में मामला, ये मेरी रिपोर्ट भी है अभी मेरे पास मौजूद है, और मेरी FIR थाना नसीराबाद में पड़ी हुई है, वो भी उनके कंटेक्ट है, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मुझे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों? कि ये बंदा हसलो हसूल रखता है लोगों के साथ, ऐसे बंदों के साथ कि बंदा गरीब हो उसकी कब्जा करना, उसको थ्रेड करना। और इसी दौरान 29/12/2023 को इसने मेरे साथ भी ऐसे किया था, मुझे मार कर, मेरे से जाली स्टाम्प बनवा कर, अंगूठे साइन करवा कर, मेरे ऊपर भी यही तशद्दुद करके इन्होंने किया। ये तो वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। चलो मेरी तो होगी, लेकिन उस बंदे के साथ इसने नजायज़ कि उसको थाने में भी थ्रेड करता रहा। ठीक है। उसको कहता रहा कि तू बाहर चल, तुझे मैं मिलूंगा। वो हमें बताता रहा कि ये मुझे थ्रेड कर रहा है और ये मुझे, मेरा इस मामला में कुछ भी नहीं है, और आपकी मेहरबानी है इससे मेरी जान छुड़वाएं। आप लोगों ने पहले उसके खिलाफ कोई जी एप्लीकेशन? जी, एप्लीकेशनें दी हुई हैं, वो बात चल रही है हमारी, वो थाने से भी है। ये तो हादसाती मौत ही कह देंगे नहीं, कि हाँ, बात सुनिए, 322 है, हादसाती है, जैसे 322 बता रहे हैं कचहरी में गिर गए एकदम से। देखिए मेरी हादसाती बात सुने, मौत है। आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा मानेंगे। एक बंदा है, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू गिरता, ये होती है हादसाती मौत के, यार बात करते करते गिर गया। एक बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये मुझे इससे खतरा है, मुझे थाने में भी कहता रहा मेरा लिंक नहीं, मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, अहले इलाका ने छुड़वाया कि यार इसका क्या ताल्लुक है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक है। वो कहता रहा कि मैं इनू देख लांगा, मैं इनू बाहर कढ़ लांगा, इनू मैं छड्डांगा नहीं, मैं जेड़ा इस मामला चाहेगा मैं गर्दना उड़ा दूंगा, मैं शारगा वड़ देंगा। ये इतना एहसास हो गया, इतना हो गया कि कानून की गिरफ्त में भी नहीं आ रहा। ये अल्फाज बोल रहे हैं। वो बोल रहा है, ये सारे इलाके को पता है, वो बाहर बोल रहा है, हम अंदर बैठे हैं। शाहिद खान ने उसको करा कि तुझे नहीं पता कि मैं खड़ा हूं इधर और मेरी मौजूदगी में ये तू हरकत कर रहा है। उसने इसलिए इसके ऊपर 751 का पर्चा दिया, उसके अंदर इसकी थाने लियाकत मतलब 22 FIR है 751 की। ये बंदा ऐसे करता है, रिकॉर्ड याफ्ता है ये। ठीक है कि नहीं? तो इस पे अभी पुलिस आपका साथ दे रही है? पुलिस हमारा बिल्कुल कर रही है, SHO साहब भी हमारे साथ हैं, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें इंसाफ दिलाने। लेकिन बात यह है कि इसको अगर आप लोग ही हमारे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ये मीडिया है हमारा कर रहा है, आप लोगों को हमारी सपोर्ट हमें चाहिए कि हमें इंसाफ दिलाए। जो उसकी बेवा एक छोटी बेटी है, वो बंदा क्या करता। लेकिन ये है कि अभी तक आप लोगों की तरफ से जो है ना FIR सर हमने नहीं ली जा रही। देखिए हमारी या FIR अभी नहीं ली तक जा रही, उसकी हादसाती वजह मौत तो करार बताइए। दिया जाता है। वजह ये है, एक बंदे को थ्रेड करके उसको मार दिया जा रहा है और उसको हादसाती करार दिया जा रहा है। आप खुद बताएं कि एक बंदे को प्रेशराइज किया जा रहा है, थ्रेड करिए, जिसका इससे ताल्लुक भी नहीं है। चले हमें कर रहा था ना, हमारा पंचायत में फैसला हो रहा था पुलिस के सामने, उसका क्या ताल्लुक है। नजायज़ बंदे को मारा गया, प्रेशराइज किया, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्यों हुआ? हार्ट अटैक हो जाता है इंसान की, जो अल्लाह की तरफ से आती है वो आती है, लेकिन वजह क्या है। अच्छा ये जो लड़ाई हुई है, ये थाने के बाहर सारे मामलात हुए सारे हैं, मामला तो। कह रहे हैं उन्होंने जूते भी मारे हैं, जूते भी काफी मारे हैं, कुत्ते तशद्दुद मारे हैं, वगैरह बच्चे किया है। बिल्कुल। तो इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पुलिस सर ने? ये तो अभी फाइनल होना है। पोस्टमार्टम हुआ है इसका? पोस्टमार्टम हो गया, उनकी फाइनल रिपोर्ट हमें आनी है, जिस पे हमारी कार्रवाई चल रही है। थाने वाले भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। SHO साहब हैं हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छे लगे हैं, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन लाजमी है, हमें आप लोग आए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ जो उनसी है ना ये पहुँचाई जाए, अदारों तक पहुँचाई जाए, अदारे एक्शन लें, मेहरबानी। अगर आज ये इस बंदे को हम कंट्रोल नहीं करता, आज एक जान गई है, कल को 4 जा सकती है, फिर अदारे क्या सोए रहेंगे? कौन करेगा? हमें इंसाफ किन लोगों से? ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारे थाने। अगर ये नहीं हमें इंसाफ देंगे, हम लोग गरीब कहाँ जाए? यहाँ मतलब कि हम कारोबार नहीं कर सकते उस बंदे के डर से, क्या दुकानें बंद करके हम सो जाएं, अपने बीवी बच्चों का रिस्क ना लेके जाएं? क्यों?
हमारा क्या गुनाह है? बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन लेकिन हमें कि क्यों नहीं अभी इंसाफ दिलाया उनकी गया? क्यों ये FIR 2.5 साल की जो बच्ची है ना, तो उसको देख के यकीन करें कि दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है। अभी ये लोग मौजूद थे तो इनके जो है ना बयान वो ज़रूरी थे। अभी FIR क्यों नहीं हुई, क्या वजह है, लेकिन पुलिस कोऑपरेट कर रही है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्लियर नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन जो है ना इस पे ये क्लियर सारी चीज़ें करेंगे, ये हादसाती मौत है या उस बंदे के प्रेशराइज करने से, थ्रेड करने से, ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। अभी हम आपको ऐसे ही कह दें कि जी उसने कत्ल कर दिया, उसने मार दिया, ये सारी झूठी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, ये समझ लें कि एक वो अंधा कत्ल है ना, जो अंधा मर्डर है, अंधी मौत है, ये वो है। आप लोगों ने जो अपनी कीमती राय है ना वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।